अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए, एक मिनट, Excuse me, sir. till previous class whatever we discussed today, I just want to, yes, any question? Sir, I have a question about this syllabus, sir. सर हम लोग के सिलेबस में ना 6 ऑनर्स पेपर है सर, जिसमें Yes. से 5 पढ़ाई हो रहा है सर, एक का कोई मतलब एक कुछ नहीं पढ़ाई हुआ अभी तक सर, रूटीन में ऐड ऑन भी नहीं हुआ है सर। कौन सा पेपर? डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सर। It will be started soon. ओके सर। That paper contains only 3 units, so यस there is no need to arrange more classes for that paper. ठीक है ना? सर, क्योंकि एग्जाम में सर 3 मंथ्स रह गए हैं सर, तो इसलिए इसको कोई पेपर हटाकर इसको ऐड ज्यादा करवाएं सर पहले, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है सर। Your one paper is about to a completion. ठीक है ना? Your discrete mathematics is about to completion. ओके Once सर। it will be completed, then after that paper will be started. ओके सर, थैंक यू सो मच। One more topic is left in that is sequential circuit after decoder encoder. So after discussion of sequential circuit flip flop, that paper will be started. ओके सर। Okay, so till today whatever till previous class whatever discussed under paper topic, any subject, Go language, if anyone have any types of doubt, then we just discuss that doubts today, and once it is completed doubt part, then today we have one poll, ठीक है ना, related to this add-on, and particular time is given to you to complete that poll. 15 questions are there, ठीक है ना, and that is of MCQ type. You just submit, each question is mandatory, and that is treated as a monthly assessment and revision quiz, that is mark you, ठीक है ना. So in between session, in between the meeting, I will launch that poll, and you just complete that poll within that particular time interval. Is it okay? यस सर। Okay, sir. Now at the same time, no link is given sent to the particular college group, because that poll is for only those students who are joining the meeting, not for all who is the part of that group. ठीक है, तो जो ज्वाइन किए हुए हैं मीटिंग, दे आर एलिजिबल फॉर दैट टू ज्वाइन दैट पोल, ठीक है ना. तो नाउ इनिशियली फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा हम ओवरव्यू देते हैं, फिर आप में से कोई किसी को कोई डाउट है तो वी जस्ट हैव 10 to 15 minutes for doubt session, and then after we just launch the poll. Now earlier in discussion we already discussed about C++. This language contains features of C++, and some of the features of Python, Java, ठीक है ना, but not completely syntax of the Java. तो C++ का जो फीचर्स है वो सारा इसमें यूज हो रहा है, बट द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज चेंज हियर, ठीक है ना. प्रोग्राम को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया. फर्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है. एंड देन आफ्टर we discuss about some of the features included as it is in C++, and some of the features excluded from Go language. So I think that this particular concept is clear to you. कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, और कुछ यूज करना बाकी है अभी, जैसे आगे स्लाइस, मैप, ये यूज करेंगे, चेन यूज करेंगे, चैनल यूज करेंगे, तो और बाकी फीचर्स भी हम लोग यूज कर पाएंगे. Then we discuss that pointer arithmetics यहाँ पर कैसे यूज होता है, pointer arithmetic का क्या सपोर्ट है यहाँ पर, extension of the Go programming language,
how the Go programming language get executed, what types of resource or environment we have, we need to execute your Go programming language. कोई बताएंगे कि टेक्स्ट एडिटर के लिए हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, अभी तक आप क्या क्या यूज किए हैं? लिनक्स भी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट VI एडिटर. तो हाउ मेनी ऑफ यू यूज VI एडिटर टू राइट द प्रोग्राम ऑफ लिनक्स, प्रोग्राम ऑफ गो? गो प्रोग्रामिंग को VI एडिटर का यूज कोई किए हैं एज ए टेक्स्ट एडिटर? नो सर. नो. यू कैन ऑल्सो यूज दैट वन. ठीक है ना? तो गो कंपाइलर, वंस यू इंस्टॉल गो कंपाइलर, एंड सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इट इज ओपन सोर्स एज लाइक पाइथन. तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द कंपाइलर विदाउट एनी लाइसेंस और एनी प्रायर परमिशन. और इंस्टॉलेशन को आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी एडिटर में. हमने बताया था कि पैकेज मेन इंपोर्ट, फॉर्मेट पैकेज को इंपोर्ट करके बेसिक कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करके आप सेव कर लीजिए .go से, और उसको जब रन करिएगा इस कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो गो रन एंड द पर्टिकुलर फाइल नेम इन विच यू आर सेविंग दैट पर्टिकुलर गो फाइल, गो प्रोग्राम, तो उस फाइल को जब वहाँ एक्सटेंशन के साथ रन करिएगा, अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है दैट मीन्स योर इंस्टॉलेशन इज ओके. अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम इन इंस्टॉलेशन. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी बताएगा. नाउ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, स्ट्रक्चर में सी को और C++ को हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट किए यहाँ पर. तो C++ में जो हेडर फाइल है, और ये थोड़ा सा हेडर फाइल इंक्लूजन इसका जो है वो आपका जावा आप पढ़ रहे हैं, जावा से रिलेटेड है. जावा अभी आप नहीं पढ़ रहे होंगे, जावा अभी आपका नहीं है ना? थर्ड ईयर में. नो सर. थर्ड ईयर में. C++ है. हाँ, तो C++ में भी हैश इंक्लूड ही यूज करते हैं हेडर फाइल के लिए. यहाँ पर इंपोर्ट यूज करते हैं. पाइथन यूज किए होंगे आप? पाइथन में GUI किए? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बस थोड़ा एक दो. ऐड ऑन शुरू हुआ है. ठीक. नहीं, फर्स्ट ईयर में भी शायद पाइथन शुरू हुआ था ना आपका? नहीं सर, वो एक यू वाला का सर. अच्छा ठीक, आपका नहीं हुआ. ठीक. तो बेसिक जो सिंटेक्स C++ का है, सी में दो एक फॉर्मेट फॉलो होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन मैनर और बॉटम अप मैनर. यहाँ पर जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो, और C++ में हमारे पास दो मोड होता है. एक तो C का जो मोड है और दूसरा क्लास मोड. तो क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं C++ में. तो क्लास, देन द क्लास कंटेन्स डेटा एंड फंक्शंस, एंड देन वी हैव अ मेन फंक्शन इन विच वी कॉल द पर्टिकुलर. तो C++ को टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच कह सकते हैं या बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच? बॉटम अप सर. दोनों सर. है ये बॉटम अप. जब क्लास यूज करते हैं तब बॉटम अप है. ठीक है ना? जब क्लास यूज करते हैं तो फर्स्ट यू डिजाइन क्लास, दैट इज द आउटपुट. यू थिंक अबाउट आउटपुट फर्स्ट, देन आफ्टर थिंकिंग अ इनपुट. तो पहले आप क्लास डिजाइन करते हैं, फिर उस क्लास का वेरिएबल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं. यानी कि जब क्लास बना लेते हैं फिर उसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को मेथड के थ्रू हैंडल करने के लिए. तो यहाँ पर भी पैकेज, देन इंपोर्ट. जो पैकेज जैसे इंक्लूड स्टूडियो कोनियो, आपको इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस यूज करना है तो आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं C++ में. और C++ में ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी आउट और सी इन यूज करते हैं, तो उसके लिए IO स्ट्रीम क्लास इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में. बाकी जितने भी मैथमेटिकल, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, सी टाइप फंक्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, ये जितना भी हेडर फाइल आप सी में यूज करते हैं वो सारा हेडर फाइल C++ में भी अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज करना है, strrev, strlen, तो वहां पर भी हेडर फाइल. तो सेम थिंग यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज, मैथ का पैकेज हो, फॉर्मेट पैकेज हो, जो भी पैकेज आप यूज करते हैं. अब जो फॉर्मेट पैकेज है उसमें यहाँ पर बहुत सारा एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज होता है. लाइक हम सी का भी फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना, कुछ जावा का भी फंक्शन यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो भी फंक्शन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया है वो फंक्शन आपका एक्सपोर्टेड फंक्शन है. और वो हमारा जो एक्सपोर्टेड फंक्शन है वो क्या है, वो बेसिकली उसका जो है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है. इज इट क्लियर? सिंटेक्स. यस सर. हाँ,
सिंटेक्स बेसिक है, जो टोकन्स हमारा हर एक सेंटेंस में एक स्टेटमेंट के अंदर सेवरल टोकन यूज होता है। अब टोकन आप क्या क्या, कीवर्ड को टोकन कर सकते हैं, आइडेंटिफायर को टोकन कर सकते हैं, कांस्टेंट को टोकन कर सकते हैं। आप किसी स्ट्रिंग लिटरल है अगर यूज हो रहा है डबल कोट के अंदर, तो उसको भी एज ए टोकन क्रिएट ही हम लोग ट्रीट करते हैं। सिंबल अगर कोई यूज हो रहा है, जैसे डॉट यूज हो रहा है, ओपनिंग आपका पैरेंथेसिस यूज हो रहा है, क्लोज पैरेंथेसिस, तो ऑल आर ट्रीटेड एज ए टोकन इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइन सेपरेटर के रूप में हम लोग न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सेमी कॉलन यूज नहीं होता है। सेमी कॉलन अगर आप यूज करेंगे तो व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, दैट सेमी कॉलन इज इम्प्लिसिटली जस्टिफाइड बाय द पर्टिकुलर कंपाइलर। तो सेमी कॉलन। दूसरा, लाइन स्किपिंग करने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं। और एलएन जैसे वहां पर यूज करते थे प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन का भी यूज यहाँ पर हो सकता है। सी का printf, scanf, एवरीथिंग इज यूज्ड इन एक्सपोर्टेड मैनर, यानी एक्सपोर्टेड फंक्शन के रूप में यूज होगा तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। कमेंट्स के लिए यहाँ सिंगल और मल्टीपल दोनों ऑप्शन है। तो अगर मल्टीपल यूज करते हैं C++ में, जैसे मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए स्लैश एस्ट्रिक्स, और जहां पर फिर जिस लाइन में बंद करना है एस्ट्रिक्स स्लैश करके क्लोज करते हैं। जैसे C++ में डबल स्लैश देते हैं एक ही लाइन यानी सिंगल लाइन कमेंट के लिए, तो यहाँ भी वो दोनों चीज यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स के लिए जो रूल आपका C++ में है वही रूल यहाँ भी है, यानी कि फर्स्ट आपका जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होगा, ठीक है ना, या अंडरस्कोर ले सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट कैरेक्टर, लेकिन डिजिट आपका पहला कैरेक्टर नहीं होगा। तो वैलिड आपका जो है वेरिएबल आइडेंटिफायर गो का सिमिलर टू C++ होगा। दूसरा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें कैपिटल और स्मॉल ट्रीटेड, आपका जो कंपाइलर है डिफरेंटली ट्रीट करता है इसको। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होता है, इसको किसी तरह से भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो सी में आपने प्रोविजन देखा था सिंबॉलिक कांस्टेंट का हैश डिफाइंड, और C++ में एक और एड ऑन आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड इज जस्ट रिप्लेसिंग द सिंबॉलिक कांस्टेंट इन डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पर भी कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होगा, जैसे सिंबॉलिक कांस्टेंट की जगह यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड से आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। देन कुछ हम लोग अभी यूज कर लिए हैं, जैसे डिफर, फॉल थ्रू, ये सब हम लोग अभी यूज करना बाकी है। चैन, ठीक है ना, कॉन्स्ट यूज किया, न्यू, अब जैसे ही स्विच, ब्रेक, ये सब, गो टू, ये सब यूज हो जाएगा, ठीक है ना। पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, स्विच, स्ट्रक्ट, सेलेक्ट, ये सब अब जैसे ही स्ट्रक्चर यूनियन शुरू होगा तो ये सारा आपका यूज हो जाएगा स्ट्रक्चर के केस में। सर मैप और इंटरफेस नहीं होता है, यस, का क्या यूज होता है? मैप और इंटरफेस का क्या यूज होता है? हाँ, मैप और इंटरफेस में आ रहे हैं। इंटरफेस आपका यहाँ पर एक्चुअली नंबर ऑफ चैनल को जोड़ने के लिए यूज होगा, ठीक है ना। हम लोग मैप भी यूज करेंगे, इंटरफेस वो भी डिस्कस करेंगे, तो फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ जो डिस्कस कर लिए अभी उसको हम एस्केप सीक्वेंस एज लाइक C++ में जो यूज करते हैं डबल कोड के अंदर ही यूज होगा, ठीक है ना। डेटा टाइप्स यहाँ पर 4 तरह से हम लोग डिस्कस किए थे। बुलियन, जिसमें प्री डिफाइंड कांस्टेंट आपका ट्रू और फॉल्स है, जिसको प्रिंट करके भी देखे थे। न्यूमेरिक टाइप में इंटीजर, फ्लोट और फ्लोट है। तो इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर और स्ट्रिंग, और डिराइव डेटा टाइप में लिस्ट ऑफ डिराइव डेटा टाइप है, जिसको जैसे जैसे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वैसे वैसे वो डेटा टाइप भी डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर। इंटीजर टाइप में यहाँ पर जो डेटा टाइप नेमिंग कन्वेंशन है उसमें u int 8, मतलब u अनसाइंड के लिए है, int डेटा टाइप इंटीजर, और 8 बिट के लिए है। तो डेटा टाइप से ही पता चल जाएगा आपको कि डेटा टाइप ये, इसमें जो वेरिएबल होगा उसका साइज कितने बिट का होगा। अगर u int 8 है तो इसका मतलब 8 बिट है, 16 है तो 16 बिट है, 32 है तो 32 बिट है। ये सारा डेटा टाइप। वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस किए। वेरिएबल्स में आपका जो, अगर कोई वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं या डेटा टाइप कोई मेंशन नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट आपका जो है वैल्यू, जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से जो वैल्यू उसमें डालेंगे वो आपका बाइट, इंट और फ्लोट 32 में डेटा टाइप डिस्प्ले करेगा। तो डेटा टाइप के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग %t यूज किए थे। तो %t का यूज है कि टाइप ऑफ द डेटा वो डिफाइन करता है।
नाउ वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने का वेरियस मोड देखे थे, विदाउट डेटा टाइप बट विथ कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन इन गो, दैट इज लाइक x इक्वल टू 20 अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, और var x। अब एक और चीज यहाँ देखिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या है कि एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और फिर आप उसको पूरे प्रोग्राम में यूज करते हैं C++ में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन बिटवीन प्रोग्राम भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक द इनपुट फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, देन कांस्टेंट्स के लिए भी सेम है, इंटीजर, फ्लोट, स्कैप सीक्वेंसेस, स्ट्रिंग, लिटरल्स। आपका जो है स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग इसको जो है लिटरल्स आपका जो भी डबल कोट के अंदर में है उसको हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स भी बोल सकते हैं। लिटरल्स मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट को लिटरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज भी देखें हम लोग यहाँ पर, और जो चीज पहले सिंबॉलिक कांस्टेंट हैश डिफाइन से सी में कर रहे थे, C++ में हैश डिफाइन का भी प्रोविजन है और कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। ऑपरेटर्स में यहाँ पर अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, ऑल आर इन कंसर्न ऑफ यू। अब यहाँ पर इनरी और बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, अगर सिंगल ऑपरेंड है तो इनरी ऑपरेटर, और दो ऑपरेंड के बीच में है तो बाइनरी ऑपरेटर। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी हम लोग डिस्कस किए थे, तो यूनरी ऑपरेटर को छोड़कर बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट टू राइट उनका एसोसिएशन होता है ऑपरेंड के साथ। यूनरी ऑपरेटर का जो है एसोसिएशन राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट यूज करना है तो A++ और डिक्रीमेंट यूज करना है तो A-, इसलिए कि प्लस राइट टू लेफ्ट आपका जब होगा तो पहले प्लस फिर A++ किसको करना है तो A को, तो राइट टू लेफ्ट आपका ऑब्जर्वेंस होगा। साइज ऑफ के साथ भी वही चीज है, जो डेटा टाइप आप डालेंगे या जो वेरिएबल डालेंगे उसी का साइज ये बताएगा। तो इसको पहले राइट में आपको जो है डेटा यानी कि वेरिएबल या डेटा टाइप कुछ भी आपको मेंशन करना होगा, तो माइनस, इनरी प्लस, माइनस एंड साइज ऑफ, दीज आर द ऑपरेटर विच इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंड इन right to left manner. Rest of the operator is associated with the operand in left to right manner. So we'll discuss the example also. Then हम लोग डिस्कस किए थे डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में सिंपल इफ डिस्कस कर लिए थे, if else radar and nested if. Now it is your chance. Anyone have any doubts? सर परसेंटी के बारे में जो बता रहे थे ना वहाँ पर, तो बता दीजिए। क्या बता रहे थे? परसेंटी सर। अच्छा, %t। जी सर। %t आपका जो है, एक मिनट, %t ठीक, आप फंक्शन लिए थे ना, देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। %t एक्चुअली क्या है कि किसी भी डेटा टाइप, यहाँ तो खैर डेटा टाइप लिया हुआ है, अगर किसी का भी डेटा टाइप आपको देखना है, ठीक है ना, सपोज इफ यू वांट टू सी द डेटा टाइप ऑफ, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हमको देखना है सी का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 64 है, तो यहाँ मान लेते हैं कि var सी कर दिए, फ्लोट 64 नहीं करें, और C इक्वल टू में हम असाइन करें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपका जो है वो वैल्यू के थ्रू कंपाइलर इसको समझेगा। लेकिन अभी यहाँ पर है तो टाइप, सपोज इफ वी प्रिंट टाइप ऑफ परसेंटेज
C percentage F is percentage C। यहाँ पर परसेंटेज F हम ले रहे हैं C के लिए, और C का ही हम टाइप भी डिनोट करना चाह रहे हैं। तो दो C हम ले रहे हैं, एक C से यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा और दूसरा से यहाँ पर जो है परसेंटेज T से इसका टाइप प्रिंट होगा। तो इट इज ओके और एनीथिंग इनकरेक्ट हियर, कोई बताइएगा। सर टाइप मतलब डेटा टाइप ना सर? हाँ हाँ, डेटा टाइप सी, यानी कि टाइप ऑफ सी। सी यहाँ हमको प्रिंट, सी का जो वैल्यू है, सी का जो वैल्यू होगा 16.0 इज, और ये सी 16.0 जो है इसका टाइप फ्लोट 64 है। तो यहाँ परसेंटेज टी में उसका टाइप बताएगा, यानी कि टाइप ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो परसेंटेज टी टाइप बताएगा। देन टाइप ऑफ 16 इज फ्लोट 64 बता रहा है ना। पहला सी जो है वो डेटा, अब इसको आप डिलिमिट कर सकते हैं जैसे सी में करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कर देंगे 6.2, तो 6.2 करने से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा बताइए। 6 होगा। 6 होगा। 6 होगा। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ 16.0 इज फ्लोट 64। तो डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए किसी भी वेरिएबल का, मान लेते हैं यहाँ पर हम डेटा टाइप नहीं लेते अगर, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते और वेरिएबल को सी को जो है यहाँ पर हम जो है 16.0 डिक्लेयर करते हैं। अब हमको इसका वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी अभी हम जो है वहाँ पर डेटा टाइप मेंशन नहीं है सी का, स्टिल द डेटा टाइप फ्लोट 64 इज डिस्प्लेड व्हेनेवर वी कॉल द परसेंटेज टी। इज इट ओके? यस। Now I just launch the poll. We will have 15 minutes for that. Now your time start. Just submit. You will get a poll. Total 15 question is there.
Total, you have 15 minutes. 1 minute for each questions. Yes, whether you will get a poll question. Anyone respond? Now 9 minutes left. सर सबमिट कर दिए। ठीक है, 4 लोग सबमिट किए हैं अभी तक। पांच लोग कर लिए सबमिट।
Now 8.5, 8 minutes left. Nine submitted, 9 submission is there. Now 7 minutes left. हो गया सर। 15 minutes, 14 submission is there. Six % left right now. 5%. 5 minutes left. Sir, how can I see the marks? I will show you the marks. Let me complete first. In next class, I will share you the marks. Four left. Okay, sir. Only four. Can I leave? Yes. Can I leave this? You can leave. Okay, sir. So attendance will be marked through the mark queue. Yes, yes. I have a lot of Zooms. I collect the attendance from Zoom also. Okay, sir. From this poll also, I have an attendance of each and every student. Okay, sir. Completed their poll. I think one person left right now, and rest person completed. Anyone have? कोई बाकी है? कोई अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए? एक रेज द हैंड. जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, रेज द हैंड. सर सबका हो गया है सर। Yes, then I close the end the poll. Okay, thank you.
है।